Hi everyone, good morning. How are you all? Better? I hope all are doing well. In this corona pandemics, we have no chance to go in the college and study and do masti, but we have to continue our studies. So our online portion is going on. Okay, first of all, let me introduce myself. Myself, Professor Dhirensi Valve, and I am former lecturer at Principal MCSA Commerce College, Ahmedabad. Okay, so let's start our lecture. Our lecture is on, our subject is human resource management, BCom semester 1 of Gujarat University. So before we start, I would like to share some important thing about our subject. In our subject there are total 4 unit, and all 4 unit containing 25% weightage. So each and every unit is important for your college examination as well as for your university examination. Okay, so let's start our unit number 1. So in our unit number 1, there are two portion are given. The number 1 portion is human resource management, meaning and characteristics. Okay, and the second portion is human resource planning in a corporate sector. Okay, so first we start with number 1, that is human resource management, meaning and characteristics. Okay, here it is. So for this part 1, question number 1 is, what is human resource management? Discuss about its characteristics, objective, functions and importance. Okay. So in question number 1 we have given too much in this question, but I would like to share that in this question we are going to learn only about its meaning and its characteristics and objective. The portion of function and importance we'll see in question number 2. Okay, so let's go. So first of all, in meaning portion, the concept of HRM include all the functions that start from the acquisition of an employee up to his maintenance. तो HRM के कॉन्सेप्ट के अंदर सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कहाँ से हमें एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू पी सुब्बा राव, HRM मीन्स एम्प्लॉइंग पीपल. पी सुब्बा राव के अकॉर्डिंग HRM का मतलब होता है कि पीपल्स, लोगों को, यानी कि लोगों को एम्प्लॉइंग करना, डेवलपिंग देयर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, यूटिलाइजिंग, उनसे बने उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लेना, मेंटेन करके रखना, एंड कंपनसेटिंग देयर सर्विसेज इन टर्म्स विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, कि जिसकी वजह से जॉब और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ज़रूरियात है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी फुलफिल हो सके. ओके, देन नेक्स्ट वन इज गिवन इज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके लक्षण. सो ऑन स्क्रीन यू विल सी only the points that are also given in your books, but in details I will try to explain each and every one. Okay, so here are the points of characteristics. That is branch of management, broad concept, flexible concept, universal activity, aim to development and growth, related with acquisition and maintenance of employee, activities of employee satisfaction, inclusive trade union activities and legal requirement. Okay, so these are the characteristics of HRM. So number 1 is branch of management. So in that, HRM is one of the important branch of the management, like production, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. HRM मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट. विदाउट एसेंशियल फंक्शन ऑफ HRM नथिंग कैन बी अचीव, यानी कि HRM के बिना कोई भी तरह की कोई भी टारगेट्स आप अचीव नहीं कर सकते हैं. इट इज़ हैंडल्ड बाय द मैनेजर. जिसे कौन हैंडल करता है? मैनेजर हैंडल करता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट. HRM का कॉन्सेप्ट कैसा है? ब्रॉड है. ओके, ब्रॉड यानी कि बहुत ही फैला हुआ है. द स्कोप ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट इज लिमिटेड. पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है टू द फिजिकल एंड द मेंटल कैपेसिटी टू फिनिश द जॉब. वाइल HRM इज हैज wide concept covering aptitude, attitude, potential, capacity, character, vision, mission and an employee including his integrity.
HRM के कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है उससे हम डेवलप कर सकते हैं, एटीट्यूड को भी डेवलप कर सकते हैं, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज, कैरेक्टर कैसा है, विजन, मिशन, वो सब चीज़ें कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान में ले सकते हैं। इसीलिए HRM के कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। देन नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। जो HRM का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, उसे जब भी चाहो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ HRM इज नॉट स्टेटिक और रिजिड, यानी HRM का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेटिक नहीं है और जड़ भी नहीं है, बट चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन टाइम के साथ उसके अंदर हम चेंज भी ला सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट आर डेवलप्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द वेरियस कंट्री। नए नए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं और एक्सेप्ट भी किए जाते हैं तरह तरह के देशों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी उस देश की सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। HRM की जो एक्टिविटी है वो कैसी है, यूनिवर्सल, यानी कि पूरे दुनिया में सभी देश कहीं ना कहीं पे HRM का इस्तेमाल करते हैं। HRM इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू इंडस्ट्रीज, बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सोशल सर्विसेज। उसका एप्लीकेबल हम सोशल सर्विसेज पर भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फील्ड में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एम टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसका एम क्या है, डेवलपमेंट करना और ग्रोथ करना। अल्टीमेट एम ऑफ द HRM इज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू देयर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करके हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे सारी चीज़ों को, एंड वेस्टेज एंड एनर्जी को भी कंट्रोल करेंगे। दिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, एम्प्लॉय का ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ दिखाई देगा। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हमें इसके अंदर क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको सबसे पहले एक्वायर करना है, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए जितने भी बंदे हमें चाहिए होते हैं वो सारे के सारे मार्केट में से हमें क्या करना है, एक्वायर करना है। एक्वायर करने के बाद में हमें उनको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और अच्छी तरीके से चल सके। HRM is also related with the acquisition of the right employee for the right post and maintenance of those employees to achieve the goals. For this, many tactics and strategies are employed. Okay, next one is activity of employee satisfaction, यानी कि इसके अंदर हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी एक्टिविटी का सेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है। HRM is also concerned with satisfaction of employee through reasonable and attractive salary structure। उनको हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, रिकग्निशन भी जॉब का दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिसिएशन दे सकते हैं, एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, assigning challenges of job, etc. All this creates job satisfaction to employees and hence growth of the organization is obvious. Okay, next point is इंक्लूसिव ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी को भी इंक्लूड करते हैं। HRM कॉन्सेंट्रेट नॉट ओनली द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय in the isolated way but also takes into account the need of the role of the trade union, यानी कि HRM सिर्फ लोगों की जो नीड्स है उसको ही ध्यान में नहीं लेता, लेकिन जो साथ में ट्रेड यूनियंस होते हैं उनकी भी क्या ज़रूरियात है, उनकी भी क्या रोल है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में लेता है। इट कलेक्ट बार्गेन एंड द प्रॉब्लम solving techniques help directly or indirectly to the organization to grow the steadily and faster way. The next but not the least, that is legal requirement. Government includes many legal provision for the industries. Timely and successful implementation of such laws are necessary. HRM works on them and implement them effectively and smoothly. Okay. देन नेक्स्ट वन इज गिवन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई हेतु होता है। किसी भी काम को हम किसी भी जगह ऑब्जेक्टिव के बिना करते नहीं हैं। वैसे ही HRM के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे 1 by 1 क्या दिखाई देगा, ओनली पॉइंट्स दिखाई देंगे, बाकी के जो उनके अंदर की डिटेल्स है वो आपको HRM की बुक के अंदर पेज नंबर 5 पे दिखाई देगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन according to your book and according to your syllabus. So number 1 is achieving the main target of the organization. The ultimate aim of the organization is to achieve the final target of the business unit. यानी कोई भी business unit हो उसका main target क्या होता है,
कि जो भी हमने प्लानिंग किया हुआ है या फिर जो भी कंपनी ने प्लानिंग किया है वो टारगेट हमें कैसे भी करके अचीव करना है. फॉर दिस पर्पज ह्यूमन रिसोर्स आर अरेंज्ड एंड लेड टूवर्ड्स द अचीविंग द मेन टारगेट ऑफ द फर्म. नेक्स्ट वन इज मेंटेन ह्यूमन रिलेशन. हमें क्या करके रखना है, ह्यूमन यानी कि लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है. विदाउट कोऑर्डिनल ह्यूमन रिलेशनशिप इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी. यानी कि हम किसी भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं बनाएंगे तो हम प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ है वो आसानी से जितनी चाहिए उतनी पा नहीं सकेंगे. HRM's ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट सच रिलेशनशिप. यार HRM का ऑब्जेक्ट भी क्या है, हमें ऐसे संबंध बनाने चाहिए जिसके हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. नॉर्मली इंडिविजुअल गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर नॉट कंसिस्टेंट और इन द सेम डायरेक्शन, हेंस कॉन्फ्लिक्ट आर बाउंड टू कम ऑन द surface. HRM aims to reduce such differences in goals and the coordinate objective. यानी कि कोई पर्सनल किसी के गोल होते हैं और कभी कभी जो कंपनी के गोल होते हैं वो दूसरे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो इसके बीच में कभी कभी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी हमें दिखाई देती है. लेकिन HRM हेल्प करता है कि जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो किसी तरीके से कम किया जा सके और कंपनी को और पर्सनल को दोनों के जो गोल्स है वो कैसे हो सके, फुलफिल हो सके. ओके, नेक्स्ट वन इज facilities and opportunities. HRM provides several facilities to employees which are very essential for their well-being and comfort. HRM provides opportunity to grow personality. नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम यूज ऑफ मैन पावर. जितने भी ज़्यादा लोग हैं उन सभी का हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है. इट इज़ जनरल बिलीफ that only 10% mental capacity of an employee are utilized in the given organization. HRM aims for the higher utilization of its maximum level. ऐसा माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ 10% मेंटल कैपेसिटीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन HRM क्या करता है, उस परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करता है. नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन. यानी कि इंसान को क्या चाहिए, वो किस तरीके से संतोष प्राप्त करेगा, उन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है. HRM looks to needs of the human, that is physical, social, job satisfaction, love and respect as per the Maslow's theory, motivation and arranges for justice, salary structure, homely atmosphere, incentive scheme, challenging jobs, assignment, etc. यानी कि HRM हमें क्या करता है कि इंसान को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो किससे सेटिस्फाई फील करता है, उन सभी चीज़ों का ध्यान देगा. जैसे कि फिजिकल नीड क्या है, सोशल नीड क्या है, उसका जॉब का सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है कि नहीं, उसको कंपनी के अंदर लव और रिस्पेक्ट प्रोवाइड होती है नहीं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मास्लो, उसकी मास्लो की जो थियरी है उसके अंदर में बताया गया है कि जो मोटिवेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ जस्टिस इन सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी बंदे को हम अच्छे से अच्छी तरीके से सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग देंगे, उसको हम उसके घर के जैसा एटमोसफियर भी क्रिएट करके देंगे, इंसेंटिव की स्कीम रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन बहुत बेहतर तरीके से भी काम कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज डेवलप मैन पावर. One of the most important objective of HRM is to develop manpower to the highest possible level by experience, training, guidance, and provide opportunity work. This brings tremendous benefit to the individual employees and employer both. नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द मोरल. सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मोरल का मतलब क्या होता है. मोरल मतलब भी कोई भी काम करने की इच्छा शक्ति. ओके, अगर आपको कोई काम ऐसे ही हमने करने दे दिया हो लेकिन आपकी खुद की इच्छा करने की ना हो तो वो काम आप इफेक्टिवली कर सकते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो किसी बंदों का पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. तो नॉर्मल है कि जो इंटरेस्ट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, डाउन मोरल, और जिसका इंटरेस्ट है उसे क्या बोलेंगे, अप मोरल. ओके, सो HRM क्या करता है, मोरल को अप करने में काम करता है. HRM creates the maintain moral of the employee. When the HRM frames organizational structure, give justice in decision making process, develops manpower's potential, etc. Naturally moral is going increasing. इसकी वजह से क्या होता है, मोरल भी इंक्रीज होता है. The next one is पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. यानी कि जितने भी लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का हमें चांस देना चाहिए. HRM क्रिएट्स रियल पार्टनर बाय द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टिसिपेट ट्रेन एंड डेवलप्ड एम्प्लॉयज हु हैव देयर रियल वॉइस एंड ट्रू ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन इज
टू प्रोवाइड द लीडरशिप, HRM क्या करता है, लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है. मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड द इफेक्टिव लीडरशिप ओनली व्हेन दे आर श्योर ऑफ इनफ एंड करेक्ट नॉलेज अबाउट द एम्प्लॉय. HRM में लीडरशिप कब हो सकती है, कि जब आप अपने कंपनी में काम करते हैं इंसान को अच्छी तरीके से जानते हो. ओके, HRM हेल्प मैनेजमेंट टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, और ये जानकारी कंपनी को कौन देगा, HRM खुद देगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयज, यानी कि जितने भी कर्मचारी हमारी कंपनी में काम करते हैं उनको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, स्टेबल करके रखना है. ओके, हमारी कंपनी छोड़ के जाना चाहिए नहीं. HRM works for the stability of the employee. For this purpose, it provides necessary support and remove any kind of injustice among various levels and provide facilities etc. यानी कि HRM ध्यान देता है कि जितने भी कर्मचारी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए. उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो हमारी कंपनी छोड़ के जा सके. ओके, एंड लास्ट वन इज मिनिमाइज द सोशल एंड इकोनॉमिकल evils. HRM manages to remove unemployment, laziness, injustice, centralization of economic power, undue influence, corruption, and many socio-economic evils by setting gradually but firmly systematic approach of the human resources. यानी human resource के अंदर कंपनी में देखे जाने वाले कुछ खराब चीज़ें होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेजीनेस है, इनजस्टिस है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिकल पावर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. इन सभी चीज़ों को कम करने में मदद करता है. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM. I know it is very lengthy, it is very complex, but you have to do it on your own sometime. Okay, so here I have tried to just give the view about your question. Okay, so if you have any kind of doubts or any kind of query, then please comment below in the comment box. We'll see you in the next lecture with the important question. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.